Hello everyone, in this video we are going to cover our second topic of chapter 4 quadratic equations class 10th NCERT mathematics, and today's topic is solutions of quadratic equation by factorization, right? Before moving on, solutions of quadratic equation, quickly revise what is called quadratic polynomial and quadratic equation. If you remember, this is the standard form of the quadratic polynomial where the ax square plus bx plus c. This is polynomial in variable x where a can't be 0, right? This is the condition. And what is called the quadratic equation? When we will equate our polynomial with 0. This is the quadratic equation. Equation means we are having left hand side and right hand side, and balance is there between both of them where left hand side is equal to right hand side. And the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, and condition is same, a not equal to 0. Now let's talk about the solutions of quadratic equation. If you remember what is called the solution of any equation, solution क्या होता है? Any value of the variable which satisfies the given equation. मतलब after substituting that value, your left hand side will become equal to the right hand side. That particular value of the variable is called its solution. If you recall the polynomials, in polynomials we have already studied about the zeros of the polynomial. What are you getting from the zeros of the polynomial? The zeros of the polynomials means such values of the variables at which the value of the polynomial will become 0. That is called the zero of the polynomial. And in the case of equation, the zeros become roots, right? अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं x वेरिएबल है तो x की ऐसी वैल्यूज़ जो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना देती है, दैट आर कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. इन द केस ऑफ इक्वेशन जो ज़ीरोज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अगर पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़, अगर इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय यूजिंग विच मेथड? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड you have already learned in your previous classes. Factorization method means whenever the quadratic polynomial or quadratic equation is given, we have to split the middle term, right? Middle term is the term which is containing x, where the power of variable x is 1. That is called the middle term. We have to split the middle term, we have to factorize it, and then we have to find out the value of variable x which are satisfying the given equation, right? That is called the roots of the quadratic equation. For example, let's consider this one first example. Example is 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. ये इक्वेशन एक मैथ्स की बहुत अच्छी इक्वेशन है. क्यों अच्छी है? अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि इस इक्वेशन में तो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हमारे पास है कांस्टेंट टर्म और 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 बना है ना. अब हमें 5 को स्प्लिट करना है. अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 2 और 3 बनेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 एंड 3. अब हमें यहाँ पे 2 नंबर बनाने हैं a और b, जिनका प्रोडक्ट तो बने पॉजिटिव 6 और जिनकी सब्ट्रैक्शन, जिनको प्लस माइनस करके हमारे पास बने -5. मतलब a प्लस b हमारे पास कितना बनना चाहिए? -5 बनना चाहिए. अब आप खुद सोच के देखो कि क्या मैं यहाँ पे a को -2 या फिर a को 2 और b को -3 ले सकती हूँ, या फिर -2 और -3 ले सकती हूँ. अगर तो ले सकती हूँ तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर -2 लेते हैं a को और b को लेते हैं -3 तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट बनेगा +6, राइट? और a प्लस b कितना बनेगा? -5. एक तो ये केस था. अब दूसरे केस की बात करते हैं कि क्या मैं इस तरह से भी ले सकती हूँ? a को मैंने 6 ले लिया और -6 ले लिया और b को मैंने 1 ले लिया, तब भी हमारे पास a प्लस b जो है वो -6 ही -5 ही बन रहा है, जो कि हमें चाहिए यहाँ पे, है ना. बट यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना a और b का
तो प्रोडक्ट हमारे पास -6 बन रहा है, जबकि यहाँ पे +3 और +2 का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। इसलिए इस इक्वेशन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी लेनी है कि ये वाली पॉसिबिलिटी लेनी है। आपको ए और बी क्या बनाने होते हैं, सबसे पहले तो आपको कांस्टेंट टर्म जो भी आपके पास है आप उसको लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें अलॉन्ग विद देयर साइंस। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे +6 बन रहा है। अब आपने 2 नंबर ए और बी ऐसे लेने थे जिनको आप मल्टीप्लाई करते +6 बनता और प्लस माइनस करते तो -5 बनता। ये वाली पॉसिबिलिटी सही है और ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस माइनस करके -5 तो बन रहा है, बट ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, -6 बन रहा है। अगर हमें +6 चाहिए था तो दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए था, तभी सम यहाँ पे नेगेटिव आता और प्रोडक्ट पॉजिटिव आता। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। 2x you can take common, x - 1 - 3 you can take common, x - 1 = 0। x - 1 will be common, you will left with 2x - 3 = 0। अब यहाँ से आप इसके रूट्स निकालें। हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स रूट्स? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी 0 ओनली इफ वन ऑफ देम इज 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उसमें से कोई एक 0 हो। तो ईदर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। जब हमने x - 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, राइट। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन में अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगी, बराबर कर देंगी। मतलब ये इस इक्वेशन के क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। इज इट क्लियर? व्हाट आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस? सच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इन दोनों वैल्यूज को क्या बोलते हैं, दीज आर द रूट्स। और अगर मान लो यहाँ पे 0 ना होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती, तो इस केस में आप 1 और 3/2 को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर यहाँ पे 0 है तो इसको आप क्या बोलोगे, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1 and 3/2. Hope it is clear. Now let's do the example 4. Here we are having 6x² - x - 2 and it is already there in the standard form. You have to split the middle term. अगर आप 6 और -2 को मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट बनता है आपके पास -12। अब a और b आपने 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -12 बने और सम करने के बाद कितना बनना चाहिए, a + b का सम कितना बनना चाहिए हमारे पास, a + b शुड बी इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 है ना x के साथ, तो -1 बनना चाहिए। अब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगी 2 × 2 × 3। आप खुद सोचो कि यहाँ पे a को कौन सी वैल्यू दें, b को कौन सी वैल्यू दें, इसमें से कौन सा फैक्टर a को दें, कौन सा फैक्टर b को दें कि हमारे पास -1 बन जाए। तो हम a को हम ले सकते हैं -4 और b को ले सकते हैं 3। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो -1 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो -12 आएगा। तो नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म, वी विल गेट 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। What is common among both of them? 2x is common, 3x - 2 + 1 is common, 3x - 2 = 0। 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय 3x - 2 इज कॉमन = 0। अब यहाँ से दो रूट्स निकाले पॉलिनोमियल के इक्वेशन के, क्या क्या बनते हैं, एक तो बनेगा -1/2 और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी 2/3। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल 5। अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म में हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो लेट्स डू दिस वन एज इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वेट हुआ है 0 के साथ, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है हमें इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके इसको फैक्टराइज करना है। तो लेट्स डू। अब हमारे पास यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है 2, राइट। मतलब अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 6। अब
आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे दो नंबर्स a और b ऐसे बनाने हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 6 बनना चाहिए। जब आप a और b को प्लस करो तो आपके पास -2√6 बनना चाहिए। बेटा सबसे इजी तरीका होता है इस क्वेश्चन को समझने का, अगर आपके पास मिडल टर्म में इर्रेशनल नंबर है तो आप अपने फैक्टर्स में ये वाला इर्रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करें, राइट। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे √6 है तो इसका मतलब यहाँ पे आप 3 और 2 फैक्टर्स तो नहीं ले सकते ना। 6 है तो √6 का क्या मतलब है? √6 का मतलब है कैन वी से a into b is 6 and 6 can be written as √6 into √6, राइट। अब आपके पास इस तरह से भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 6 को, वी कैन राइट इट एज √6 into √6। अब हमने 6 के ये वाले फैक्टर्स ले लिए √6 into √6। अब आप देखो a प्लस बी कैसे बनेगा। a प्लस बी बनाने के लिए आप a को कौन सी इसमें से कौन सा एक फैक्टर दोगे, तो वी कैन से a कैन बी √6 एंड b कैन ऑल्सो बी √6। एक √6 हमने a को दे दिया, एक √6 हमने b को दे दिया। जब भी इर्रेशनल नंबर आएगा तो रूट वाला फैक्टर तो a और b दोनों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर हम इसको दोनों को नहीं देंगे तो इसको प्लस माइनस करके लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 6 रूट वाला नंबर √6 वाले नंबर के साथ ही प्लस माइनस हो पाएगा ना। तो इसका मतलब मिडल टर्म जब आप स्प्लिट करोगे तो दोनों में आपको √6 रखना पड़ेगा। एक √6 हमने -√6 a में आ गया, -√6 b में आ गया, तभी तो इनको प्लस करेंगे तो -2√6 बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लो, माइनस माइनस प्लस √6 इंटू √6 इज 6। तो इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो आपको दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 6 बने और प्लस माइनस करके आपके पास -2√6 बने। तो ये दो फैक्टर्स आ गए -√6 एंड -√6। नाउ यू हैव टू राइट द कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चों को दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, बेटा यहाँ पे सिर्फ x कॉमन नहीं है। एक √6 के अंदर अगर आप बात करोगे तो एक √2 भी है और एक √3 भी है, और यहाँ पे एक 3 के अंदर दो √3 हैं। 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 एंड √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3, isn't it? Here √6 can be written as √2 into √3 and 2 can be written as √2 into √2। आप इसको इस तरह से देखिए और फिर निकालिए इसमें से कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? एक √3 यहाँ पे भी है, एक √3 यहाँ पे भी है, और x तो है ये, तो √3x हमारे पास बाहर आ गया। What left inside? √3, ये वाला √3 बच गया और इसके साथ एक x बच गया। यहाँ से अगर √3 बाहर आएगा तो क्या बचेगा? √2, राइट, माइनस व्हाट इज कॉमन अमंग बोथ ऑफ देम? जो इस टर्म के साथ साइन होता है वही साइन कॉमन आता है। अब इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, तो आप पहले तो √2 को बाहर लिखोगे। व्हाट इज लेफ्ट? एक √3 बच गया और उसके साथ x बच गया। यहाँ से √2 बाहर आया था तो यहाँ पे प्लस में माइनस का साइन कॉमन लिया ना, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। दिस इज -√2 एंड दिस फैक्टर मस्ट बी सेम, तभी तो आप इसको कॉमन ले पाओगे। √3x -√2 इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? √3x -√2। दोनों फैक्टर्स के आगे हमारे पास सेम आ गए, इज इक्वल टू हमारे पास 0 भी है। अब आप इसको इक्वेट करो 0 के साथ और यहाँ से x की वैल्यूज निकालो। अगर आप इसको 0 के साथ इक्वेट करते हो, हमारा फैक्टर है √3x -√2 इज इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू √2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव √2, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके √2 अपॉन √3 एंड यू कैन राइट इट एज 2 अपॉन अंडर द सेम रूट, इस तरह से, राइट। या फिर आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास इरेशनल नंबर होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो बेटर टू रैशनलाइज इट।
तो यू कैन राइट इट एज √6/3. दिस इज द फर्स्ट रूट. जब आप सेकेंड निकालोगे तो सेकेंड रूट भी सेम ही आएगा, x इज इक्वल टू √6/3. तो आप क्या लिखोगे? हियर वी आर हैविंग टू रूट्स but both the roots are same, √6/3 and √6/3. Let's do the next one. Hope you are clear with this topic. Topic is factorize the quadratic equations. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. Factorization means by splitting the middle term. Firstly we have to factorize it. इसके फैक्टर्स बनाने के बाद हमने वहाँ से उसकी क्या निकालनी है? रूट्स निकालने हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4. This is exercise 4.2, question number 1. Let's do your first question. We are having x square minus 3x minus 10. यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -10 है. इसका मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए a और b जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -10 बने और a प्लस b करो तो -3 बने. प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है. प्रोडक्ट नेगेटिव होने का क्या मतलब है? प्रोडक्ट तब नेगेटिव होगा ना जब उसमें से एक टर्म नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी. और सम नेगेटिव है तो जो बड़ी टर्म है वो नेगेटिव होगी. तो अब 10 है आपके पास, 10 है तो आपको 3 चाहिए. तो कैसे बनाओगे? 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 5 and 2. a को आप 5 लोगे, b को आप 2 लोगे. नाउ कंसिडर देयर साइंस. a को आप -5 लोगे और b को आप +2 लोगे, तभी यहाँ पे -3 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट -10 आएगा. इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. x स्क्वायर -5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0. x कॉमन आ गया, x -5 + 2 कॉमन आ गया, x -5 इज इक्वल टू 0. x -5 इज कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0. x की एक वैल्यू आ गई 5 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -2. दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. आई एम गोइंग टू डू थर्ड क्वेश्चन. दिस इज द थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन में चेक करना है कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है. कई बार बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि अगर मिडिल टर्म पीछे लिखी हुई है और इसमें इस टर्म को कांस्टेंट को सेंटर में लिखा हुआ है तो वो उसको प्लेस प्रॉपरली करना भूल ही जाते हैं. तो थोड़ा सा माइंडफुल होके काम करना है, राइट? यहाँ पे मिडिल टर्म लिखी हुई है 7x, इट इज़ करेक्ट. अब आपके पास ये लीडिंग कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों ही पॉजिटिव हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 5√2 × √2. दिस इज 10, राइट? √2 × √2 इज 2. तो 5 2s are 10. अब 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 5 × 2. अब आपको दो नंबर चाहिए a और b जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव 10 बने और प्लस माइनस करो तो पॉजिटिव 7 बने. तो सिंपल, a को आप 5 रख दो, b को आप 2 रख दो, राइट? तो ये आ जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0. अब आप इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है. 5 के अंदर √2 तो नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है. अंदर कितना बचेगा? √2x + 5. बट अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एक 2 के अंदर दो √2 होते हैं. √2 × √2 इज 2. अब यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे दो √2 है तो एक √2 कॉमन आएगा. √2 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? एक √2 बच गया. √2x + 5 इज इक्वल टू 0. और ये दोनों तो सेम बनने ही चाहिए, तभी तो आप इनको कॉमन ले पाओगे. जब हम इनको कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? x + √2 इज इक्वल टू 0. एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करो, एक बार इसको. जब आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी √2 + 5 इज इक्वल टू 0. पहले 5 ट्रांसपोज होगा, √2x इज इक्वल टू -5. अब √2 ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइडेड बाय √2. जब आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे प्लस है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√2. क्या इसको ऐसे ही छोड़ना सही है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो आपको इसको रेशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा. -5/√2 × √2 × √2. तो ये कितना आ जाएगा?
-5√2 डिवाइडेड बाय 2। एक ज़ीरो आपके पास इसकी आएगी, एक रूट आपके पास आएगा -5√2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा रूट आएगा -√2। दीज आर द टू different roots of this given quadratic equation. Let's do next one. Okay, let's start with this one. अब आप यहाँ पे देखो, वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर यहाँ पे हमारे पास ए डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम विल बी 8। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 8 से 8 तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा 16x² माइनस 8x। 8 1 से 8 तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। अब ये 8 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म -8। आप कांस्टेंट टर्म 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 6 है, 16 है। 1 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो a और b का प्रोडक्ट बनेगा 16 और आपको दो नंबर a प्लस b ऐसे ढूंढने हैं जिनको सम करने पे आपके पास कितना बने -8। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर है और सम नेगेटिव नंबर है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब दोनों नंबर जहाँ तो पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर जहाँ तो नेगेटिव होंगे। बट अगर सम नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों नंबर हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले तो आप 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी 2 × 2 × 2 × 2। अब आपको बनाना है 8, तो कैसे बनाएंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8। a आप ले लो -4 और b भी आप ले लो -4 और इन दोनों का सम आएगा -8 और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा +16। तो दिस कैन बी रिटन एज 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Now let's take common factor out. 4x is common, 4x minus 1 minus 1 is common, 4x minus 1। जब आप -1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 4x आएगा और ये नहीं है कि आप 1 ही उठा के बाहर रख दोगे और इस टर्म को ही खत्म कर दोगे, 0 लिख दोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये टर्म तो यहाँ पे रहेगी। -1 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, -1 बचेगा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या बन गया, 4x minus 1 इज द कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है दोनों में और 4x minus 1 ही लेफ्ट है, इज इक्वल टू 0। इक्वेट विथ 0, 4x minus 1 इज इक्वल टू 0, 4x minus 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 और दूसरी भी x की वैल्यू आ गई 1/4। Here we are having both equal roots 1/4 and 1/4. Let's do the next one. This is the fifth part, 100x² minus 20x plus 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। लीडिंग कोफिशिएंट 100 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, मतलब आपके पास a और b दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 100 बनना चाहिए और a प्लस b आपके पास -20 बनना चाहिए। अगेन अगर आपके पास दोनों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जहाँ तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, जहाँ दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव बन पाएगा। और अगर यहाँ पे दोनों नंबर्स का सम नेगेटिव है तो इसका मतलब अब इसमें तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, जहाँ तो बोथ पॉजिटिव और यहाँ फिर बोथ नेगेटिव। अब अगर यहाँ पे सम नेगेटिव है तो क्या बोथ पॉजिटिव वाली सिचुएशन हो सकती है? नहीं ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती। दोनों नंबर्स जो भी बनेंगे आपके पास क्या बनेंगे, नेगेटिव। अब आपने 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 100 का मतलब है 10 × 10, 2 बार 10 है, एक 10 में एक 2 और एक 5 होता है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 × 2 × 5 × 5। ऐसे ऐसे करके नहीं देखना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको आपने 20 बनाना है, तो कैसे बनाओगे, हाउ वी कैन डू इट? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 20 होते हैं। तो आप a को भी ले लो -10 और b को भी ले लो -10, तभी तो उनका सम -20 बनेगा और प्रोडक्ट 100 बनेगा। क्वेश्चन आपने खुद करना है। लेट्स डू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 2 इज सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो ये एग्जाम्पल आपको पीछे दे रखा है पहले से ही, अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45।
बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5 मार्बल्स गुम हो गए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। गुम होने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। आपने फाइंड आउट करना है कि बिगनिंग में उन दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स चिवंती हैज इज इक्वल टू 45 माइनस x, राइट। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे y भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले लें y, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉन के मार्बल्स x लोगे और जिवंती के y लोगे तो दोनों का इकट्ठा सम कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उन्होंने बोला है कि दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट पर्सन के भी 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए और सेकेंड के भी, लॉस मीन्स माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 124। अब यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन में से जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पे x और y नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करोगे तो अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव is equal to x, let number of marbles Juvanti has is equal to 45 minus x, that is not x minus 45, total 45 हैं, तो obviously जो जिवंती के पास बचेंगे वो कितने बचेंगे 45 माइनस x। अब उन्होंने बोला है दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जॉन के भी 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, x माइनस 5, और जिवंती के भी 45 माइनस x माइनस 5, और अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। सॉल्व करते हैं, x माइनस 5, 45 माइनस 5 इज 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इसको ओपन करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x मल्टीप्लाई बाय, पहले x को मल्टीप्लाई कर लो 40 माइनस x के साथ, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लो 40 माइनस x के साथ इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 40x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। This is minus x square, 40x minus 120x, this will be minus 80x। अच्छा, ये 5 के साथ भी तो x है, this is, ये क्या किया हमने भाई, हमने कुछ गलत किया ना। This is 40x minus x square minus, this is गलत, this is wrong, हमने गलत लिखा है। 5 4s are 20, 200, यहाँ पे कोई x नहीं आएगा, प्लस 5x। अब ये 40x प्लस 5x, इट इज पॉजिटिव 45x माइनस 200, 124 को भी इधर ले आओ, माइनस 124 इज इक्वल टू 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस, अब दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 324 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन मतलब आप सारी टर्म्स को उस साइड पे ले जाओ क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 45x नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 324 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और 45 बनाना है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें क्वेश्चन। नाउ दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें बनाना है, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, हमें 45 बनाना है। अब इसके फैक्टर्स को यूज़ करो, आपको 2 नंबर बनाने हैं a और b, प्रोडक्ट तो उनका 324 होना चाहिए पॉजिटिव, और प्लस माइनस करके हमारे पास माइनस 45 रहना चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, तो
तो आप खुद सोचिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। प्रोडक्ट पॉजिटिव है जहाँ तो दोनों पॉजिटिव, जहाँ तो दोनों नेगेटिव, और सम नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, जहाँ तो दोनों पॉजिटिव, जहाँ तो दोनों नेगेटिव। और दोनों पॉजिटिव अगर होते तो प्लस कभी भी सम पॉजिटिव नहीं हो नेगेटिव नहीं हो सकता था। इसका मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों नंबर्स नेगेटिव। अब आप सोचें, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होने का मतलब है दोनों नंबर्स प्लस करके -45 बनेगा। अब देखो कौन से नंबर्स बन सकते हैं यहाँ से, कुछ फैक्टर्स ए में रखो, कुछ फैक्टर्स बी में रखो। कौन से फैक्टर्स कैसे रखोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 + 9 इज़ 45। तो ए आप रख लो, ये सारे फैक्टर्स आप ए में रख लो और इन दोनों को आप बी में रख लो। इसमें से कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है, आपको भी पता है अगर छोड़ोगे तो प्रोडक्ट 324 नहीं बनेगा। और कोई भी फैक्टर जितनी बार है उससे ज़्यादा बार लेना नहीं है, अगर लोगे तो भी आपका प्रोडक्ट 324 नहीं बनेगा। तो इन्हीं फैक्टर को अपने रीअरेंज करना होता है, कुछ ए में रख दो, कुछ बी में रख दो। इसको सीखो बेटा, इस पर वर्क करो, 2-3 बार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजीली आपका इस कॉन्सेप्ट पे होल्ड हो जाएगा। तो ए कितना आएगा आपके पास, ए विल बी 9 4 ज़ा 36 माइनस, और बी विल बी -9। प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस है तो ये प्लस बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो -45 आ जाएगा। तो x² -36x -9x + 324 = 0। व्हाट इज कॉमन, x। तो x -36, अब इसमें से -9 कॉमन आएगा, x माइनस, अगर 9 कॉमन आएगा तो अगर आप 9 कॉमन रखोगे तो आपके पास ऑब्वियसली 36 बच रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा -36। नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा 0। एक प्लस में 2 माइनस के साइन होते हैं, प्लस का क्या मतलब होता है, माइनस इंटू माइनस। अगर एक माइनस बाहर कॉमन आएगा तो एक माइनस अंदर बचेगा। x -36 अंदर कितना बचा, x -9 = 0। x की एक वैल्यू आ गई आपके पास 36 और x की दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन गई कि हमारे पास जॉन के पास जहाँ तो 36 मार्बल्स हैं, जहाँ फिर 9 मार्बल्स हैं। अब देखो ऑब्वियसली अगर जॉन के पास 36 हैं तो जयवंती के पास 45 - 36 मीन्स 9, और अगर जॉन के पास 9 है तो जयवंती के पास 45 - 9 दैट इज 36। तो आपने दोनों केसेस लिखनी है। फर्स्ट केस आप लोगे व्हेन जॉन हैव 36 मार्बल्स, तो जयवंती के पास कितने आएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जब आपने ले लिया यहाँ पे 36 तो नंबर ऑफ मार्बल्स जयवंती के पास कितने आएंगे, दैट इज 9। ये केस 1 था। केस 2 क्या बनेगा, जब इसके पास 9 है तो इसके पास कितने बनेंगे, 36। तो यू हैव टू राइट बोथ द केसेस, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 questions we will cover in our next video. Thank you.